friends, for IPMET 2024, question number 15 is in front of you. Wonderful question on geometric progression. I'm sure all of you know how the geometric progression दुनिया works. ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे? The sum of a given infinite geometric progression is 80. So as a concept, है ना, which I already know. क्या पता है मुझे? That sum of infinite GP is given by, you can say, A upon 1 minus R, okay, and R has to be less than 1. So they said the sum is 80. So this is 80 is equal to A upon 1 minus R. ठीक है, that is the information they have given. Another information, sum of its first two terms is 35. So that is the first information. Second information, क्या है भैया? Sum of the first two terms. First two terms कितना है? Which is 35. So what do you mean by the first two terms? First term is A, second term is AR, so that is 35. ठीक है, so I have two equations. Okay, if I present this equation in a little different way, ठीक है, that is saying that A is equal to AT into 1 minus R, ठीक है, and this is, you can say, A common, ठीक है, और ये मुझे मिलेगा 35, है ना, divided by 1 plus R. सही है, ठीक है. So if I equate both of them, है ना, if I equate both of them, so what do I get is AT into 1 minus R is equal to 35 divided by 1 plus R. So that means 1 minus R square is equal to 35, you can say, by 80. सही है? Okay, perfect है, ठीक है. So what happens? So what is R square? R square is equal to 1 minus 35 by 80. So that is somewhere around 80 minus 35, which is 25, है ना, 25 by not 25, sorry, ठीक है, कितना होना चाहिए? 45 by 80, ठीक है. So that is nothing but 5 9s are 5 16s are. So R की वैल्यू मेरे लिए बनेगी, ठीक है. So R is equal to plus or minus 3 by 4, है ना. क्या बनेगा मुझे? Plus or minus 3 by 4. Now what will I take here? है ना, दैट इज व्हाट आई विल हैव टू अगेन से कंसीडर. अब मुझे समझना क्या पड़ेगा, प्लस लूँ या माइनस लूँ. ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स इज क्लोजेस्ट टू 100. ठीक है, इन्होंने बोला इनफाइनाइट सीरीज का सम ही तो 80 है ना, और ये बोलते हैं कि ऐसे कितने टर्म है, ऐसे पहले कितने टर्म है जिनका सम अगेन से 100 हो जाए. नाउ दिस इज वेयर द क्लू इज. सबसे बड़ी क्लू यहाँ पे है ना. क्या क्लू है कि भाई, है ना, अगर पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 80 है, शुरुआत के टर्म का वैल्यू उससे ज्यादा है, ठीक है, विच मीन्स ठीक है, आपका जो आर है ना वो पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा. अगर आर नेगेटिव है तो आपको समझ आता होगा कि अगर आर नेगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है तो ए आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्म. फिर ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. फिर ए आर क्यूब क्या होगा? नेगेटिव. फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. ऐसे सिस्टम चलती रहेगी ना. ठीक है, जब ऐसे सिस्टम चलती रहेगी, ठीक है, तभी तो जाकर आपका सम 100 बन सकता है. Yes or no? I hope it is very clear. चलिए बढ़िया, ठीक है. So what is the outcome I have to take? R is equal to minus 3 by 4. I can't take R is equal to 3 by 4 because if I am going to take plus, every number is a positive, और पॉजिटिव नंबरों का अगर मैं सम करता जाऊंगा तो वो कभी भी 80 से ऊपर जा नहीं सकता. यहाँ पे इन्होंने बोला कि 100 चाहिए मुझे, so therefore the scenario is very different. ठीक है, चलो बढ़िया, ये मेरे दिमाग में दौड़ रहा है. So what is happening, है ना, I will use R का वैल्यू as minus 3 by 4, ठीक है, and I will get the value of A. Okay, so if I use this, है ना, A is equal to 80 into 1 minus minus that is plus 3 by 4 हो जाएगा. So ये हो जाएगा 7 by 4. 7 by 4 into 80 is equal to 140. So A is equal to 140. पहला नंबर आपका 140 है. दूसरा नंबर, अब इन्होंने पूछा है कि ऐसे n क्या है ना, तो that's the rough calculation I will do. ठीक है, 140 into minus 3 by 4, है ना, आप देख सकते हैं 140 into minus 3 by 4, है ना, is equal to 4, 3s are 12 and this is 35, so this is minus 105.
ठीक है। अब आप देखिए 140 प्लस माइनस 105 इज सम 35, बराबर जा रहा है, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने अप्रोक्सीमेट बोला है, सो आई विल ट्राई एंड टेक दिस एज एन अप्रोक्सीमेट दुनिया, ठीक है। सो दिस इज माइनस 105 इंटू माइनस 3/4, ठीक है, 4 से कटेगा, है ना, ठीक है। दिस इज 104, सो दिस विल बिकम सम अराउंड 26 के आजू बाजू, 26 इंटू 3, है ना, 26 इंटू 3, है ना, दैट इज 78, ओके, 78, yes, so this is positive 78, okay। next number is 78, है ना, आप देख सकते हैं 35 प्लस 78, है ना, 35 प्लस 78 कितना हो गया, 70 प्लस 30 इज 100, क्योंकि इन दोनों का सम 35 था, प्लस 78 मुझे करना है, सो 70 प्लस 30 इज 100 एंड 8 प्लस 5 इज 113, सो ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, और ऑप्शन में भी नहीं है मेरे पास, सो आई विल चेक वन मोर टाइम। अब आपको ये तो पक्का पता है, ठीक है, कि अगला जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, 78 इंटू माइनस 3/4, है ना, 4 1 जा 4, ठीक है, एंड 38 19 3 जा 57, ठीक है, समवेयर अराउंड 57, जस्ट अप्रोक्सीमेट देख रहा हूं मैं, ठीक है। देन आई हैव 57 इंटू 3/4, 57 को मैं 56 मान लेता हूं, तो दिस बिकम्स 4, आई कैन से 14 3 जा 42, ठीक है, 42। सो व्हाट हैपन्स, मेरे पास क्या नंबर बना, दिस वाज, यहां तक मेरा नंबर था 113, ठीक है ना, 113, और ये 57 और 42 का डिफरेंस हो गया समवेयर अराउंड -15, सही बात है ना, अप्रोक्सीमेट है ना, विल जस्ट टेक द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये नंबर मेरे हिसाब से बेटर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, सो आई विल बी वेरी नियर टू 100, ठीक है। इफ आई मूव फर्दर, ठीक है, तो मुझे एक और नेगेटिव नंबर चाहिए, फिर एक और पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 42 इंटू माइनस 3/4 करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 के आजू जाएगा, सो ये हो जाएगा मेरा -30, ठीक है। फिर क्या होगा 30 इंटू माइनस 3/4, सो दैट इज 7 3 जा 21, दैट इज प्लस 21। अब आप यहाँ पे गैप देखिए बहुत बड़ा बन रहा है, सो देयरफॉर आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गो टू दिस, सो ये मेरे कहाँ तक सम बनेगा, दिस इज नियरर टू 100 इज एट 5 टर्म्स, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या बनेगा 5, ठीक है। बड़ा क्रूशियल पार्ट था कि आपका आर का वैल्यू क्या होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो आई होप दैट इज वी कैन से वर्कड वेल विथ यू, आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।